వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్. Today I have an expert on fitness field. She is well known, expert, celebrity, favorite. None other than Kiran. Reveal your age. I mean, you've been always open. Definitely, now you're going to be 50, and the way you are sitting, and I'm little bit less than you. So first of all, I want to know what important role exercise plays in our life. कार का एग्जाम्पल देती हूँ. हर महीने उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, नहीं तो वो रुक जाएगी. सिंपल है, कार वापस आ जाएगी, लेकिन अगर इंसान को कुछ हो जाए तो उसको लाना बहुत मुश्किल है. Most important thing in a phase of a life of a woman, I must say, 40s is naughty. People say that. How you define that? Women at 40s. 30 के बाद जो हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं ना, उसमें सेक्सुअल डिजायर जो होती है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बच्चा बूढ़ा एक समान. हम एक ऐसी एज में होते हैं तो हम कहीं बच्चे के जैसे हो जाते हैं अपनी 40s. Like we need baby care. बेबी केयर, हमें 40s में वो केयर चाहिए होती है. So आपने एक्सपीरियंस किया है कि like actresses who are going into their 30s and 40s, how they maintain and their work are very, उनके work schedules are very hectic. So any of them you can share the journey about them. सेलिब्रिटीज़ का हमेशा ऐसा ही होता है कि उनका वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता. उनके साथ मेन है कि उनको स्क्रीन पे दिखना है और अच्छा दिखना है. So I just wanted to know, like you're doing with Tamanna, all big celebrities, उनकी भी exercise एक rhythm रहता ही है. Day का एक time रहता है when they love doing exercise. So can you just one or two celebrities, I'll take the name, or you can just reveal like what kind of exercises they like. अगर मैं राजमौली जी के बारे में बात करूँ, हमारे द ग्रेट favorite है. I love him. राजमौली जी, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो उनको Welcome to my show Trendsetter. Well, today I have an expert on fitness field. She is well known, expert, celebrity, favorite. None other than Kiran ma'am. I always tell my interview that I always look forward to meet you, you know. You Thank are you so actually trendsetters for us, because I can see I can tell you, reveal your age. I mean, you've been always open. Definitely, Now you're going to be 50, and the way you are sitting, and I'm little bit less than you. I mean, I'm into my 40s and I could not able to sit like this. I mean, you've been so much inspiration for a woman and for me personally. Thank you first of all for my show, and thank you for giving your time for your busy schedules, and you always been supportive to me. So that one thing I would like to start with positive note. Kiran ma'am, what makes you fit again as your journey is getting into now 50 plus? पॉजिटिव एटीट्यूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. ये इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप सबको पता लगने वाली हैं. और थैंक यू सो मच नेहा एंड इस इंटरव्यू के लिए. और आज हम जो भी बात करने वाले हैं, और मैं हेल्दी और फिट रहने का राज क्या है अब तक 50s में, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव माइंड ही आपको फिट बनाता है. अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आप कुछ भी कर जाओगे. सो आपका वर्कआउट चालू होता है यहाँ से, फिर नीचे जाता है. I know. You know, mostly we always look forward to go for gym, and you know, एक योगा और एक्सरसाइज की अपनी एक, कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स हैं. जो मतलब सब्जी दाल रोटी हम खाते हैं, दाल का अलग फ्लेवर होता है, सब्जी का अलग होता है, रोटी की अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सो वी ऑलवेज गो टू द जिम, राइट? बट I think gym से better, not a better option, like yoga or exercises. There are blunder, like there are varieties which we don't know also. कि you know, we sometimes feel like gym जाना पड़ेगा, travel करना पड़ेगा, but at home also we can do so many things, right? So first of all, I want to know what important role exercise plays in our life. सी एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक कार का एग्जाम्पल देती हूँ. जब हम कोई भी कार लेते हैं तो हर महीने उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, नहीं तो वो रुक जाएगी.
तो ऊपर से चमकाना बात अलग होती है कि हमने ऊपर से चमका दिया कार को, दैट्स डिफरेंट। जो इंसान में कहा जाएगा कि हम कपड़े पहन रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं, सेम कार को हम ऊपर से पोंछ रहे हैं और उसको क्लीन कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसका इंजन ठीक करते हैं, उसमें ऑयलिंग डालते हैं ताकि हमारी कार ठीक से चल सके, बराबर चल सके, दैट वर्क्स लाइक सेम इन अ ह्यूमन। कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो अंदर के फंक्शंस होते हैं, हमारा किडनी, लीवर और जो भी एक हमारा हम एक स्केलेटन है अंदर, तो उसमें कोई जाम नहीं आए और प्रॉपर चलता रहे, उसकी ऑयलिंग होती रहे, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। सो एक सिंपल है, कार वापस आ जाएगी, लेकिन अगर इंसान को कुछ हो जाए तो उसको लाना बहुत मुश्किल है। सो एक्सरसाइज प्ले मेजर रोल। कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, जिम हो, जिसको जो पसंद हो, पर उस इंजन को चलाते रहना है। But सो एक्सरसाइज let's प्ले come मेजर back to रोल। women body, you know. Mostly, obviously, men's ki body and women body. After certain age, you know, we go through so many changes, hormonal ho, kuch bhi ho. Once you get into the 40, I think you need to, like, let's do age-wise. When a girl turns 20, how you define that? What needs to taken care of when she's going into her 20s? सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन केवल ऐसा नहीं है कि हम अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सबका होता है, अभी स्कूल जाना है, एजुकेट करना है उनको उनकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में। और एक लड़की के जो हार्मोनल चेंज होते हैं, उसमें जो चेंज आते हैं, वो उनकी माँ को, सबसे पहले तो माँ सबसे बड़ी टीचर होती है, तो माँ को समझाना है इन चीज़ों को। लड़की को लड़की जब बड़ी होती है, उसको पीरियड्स होते हैं, तो उसको पहले से पता होना चाहिए सब कुछ। तो वो एक माँ ही है जो मेजर रोल प्ले करती है, और वो एजुकेशन माँ को अपनी बच्ची को देनी चाहिए, ताकि उसे आगे जाके अपने स्कूल में और कहीं आगे उसे प्रॉब्लम नहीं हो। आगे तो वो छोटी छोटी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, कैसे मतलब कैसे कैसे बच्चा चेंज होता है माइंड से, बॉडी से, तो सबसे पहले माँ है जो अगर उनको समझाएगी तो बच्ची को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा स्पेशली। सो यस, ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। तो आगे तो फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो एक बार पता लग जाए तो अपने आप दे टेकन केयर। And then when girl or a woman turns into 30s, 30s हमें ये याद रखना है कि जो 20 से आप कहेंगे 17 के बाद से जो एज होती है, 17 टू 25 की जो एज होती है, इसके बीच में टीन एज आता है। उसके बाद ब्यूटीफुल यंग वुमेन 23, 24, 25 का ये जो एज होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो ऑपोजिट जो सेक्सुअल जो एक अटैचमेंट होता है, ये सब चीज़ें एक कहते हैं ना, गर्म खून होता है जो कुछ भी करने मरने को तैयार हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कभी कभी हम सही डिसीजंस लेते हैं, कभी कभी गलत डिसीजंस हो जाते हैं। उस समय हमारा माइंड बहुत उछाले मार रहा होता है कि मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। वो टाइम जैसे ही निकलता है, और वही राइट टाइम है। मैं कहती हूँ अगर कोई बचपन में भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं, ठीक है बच्चे इतना नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बात अलग है, बट जैसे 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 अगर आप 21 के हुए, 22 के हुए, यहाँ से आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चालू करिए, अपनी वॉकिंग चालू करिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने स्किन पे ध्यान दीजिए, अपने डेली रूटीन पे ध्यान दीजिए, आपके खाने पीने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको 30 में पता लगेगी कि जो मतलब अगर हम पहले अच्छा कर लेंगे तो हमें 30 तक रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये ठीक नहीं किया उस एज में, तो 30 में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो एक कहावत है कि 30 से पहले बॉडी हमारी सुनता है, 30 के बाद हमें बॉडी की सुननी पड़ती है। उस 30 के बाद बॉडी आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, और उसको जैसे मर्जी करेगी वो वैसे टर्न होता जाएगा इंटरनली। सो अगर आप एक्सरसाइज करते होंगे, अच्छी डाइट लेते होंगे, अच्छा सब कुछ करते होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, तो आपको 30 का पता भी नहीं लगेगा, वो निकल जाएगा, एंड यू विल बी सो हेल्दी, एंड वो टाइम बहुत ईजी हो जाएगा। let's come back to 40, the most important thing in a phase of a life of a woman. I must say 40s is naughty. People say 40. that. How you define that, women at 40s? जब 40 आता है ना, तो You can share your journey also. हाँ, मैंने सुना भी है बहुत, और खुद अपने में भी जो चेंजेस पाए हैं 40 में। खैर मेरा जो साइड है वो बहुत हेल्दियर साइड है। मैं बहुत 20 साल हो गए हैं मुझे एक्सरसाइज करते हुए। अच्छा, 30 के बाद जो हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं ना, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है, क्योंकि औरत घर, बच्चे, परिवार, उसमें इतनी बिजी हो जाती है कि उसका कहीं वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन
अगर हम मेडिकली देखें तो 40 में वो डिज़ायर बहुत हाई हो जाती है। Okay. ट्रस्ट मी। Okay. और कहीं ना कहीं हम कहीं कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान, हम एक ऐसी एज में होते हैं तो हम कहीं बच्चे के जैसे हो जाते हैं अपने 40s में। Like we need baby care. बेबी केयर, हमें 40s में वो केयर चाहिए होती है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो हम वापस से एक बचपने उसमें आ जाते हैं, एक बेबी केयर हो जाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ का आधा टाइम हम निकाल चुके हैं, हम बिल्कुल मिडिल में हैं अभी। तो 40s में आजकल तो अगर कहा जाए जो औरत को जो चेंज आते हैं, उनका वेट गेन होना, क्योंकि अगर जो लोग वर्क नहीं करते हैं बाहर, जो वर्किंग वुमेन नहीं है, जो घर में रहती हैं, तो वो उनका तब तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है वो स्ट्रेस और खाना पीना बराबर नहीं है, स्लीप बराबर नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और 40 तक आते आते बढ़ जाती हैं बहुत। तो अगर आपका डाइट बहुत अच्छा होगा, आप एक्सरसाइज करते होंगे, तो आपको जो 100% प्रॉब्लम होना है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ And mental awareness, mental peace. मेंटल अवेयरनेस, मेंटल पीस। 40 तक आते आते ना हमें एक पीस भी चाहिए होता है, एक पीस, मतलब जो मैंने आपको बताया सेक्सुअल डिज़ायर जो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं एक पीस चाहिए होता है, कहीं एक लगता है कि स्ट्रेस लगता है कि हमारा कम होना चाहिए, पर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी हो जाती हैं ज़्यादा, क्योंकि घर और परिवार होता है। तो इसका एक ही तोड़ है, और काफ़ी लोगों को तो आजकल मेनोपॉज 40 में ही हो रहा है। There's many, coming और early. इट्स कमिंग अर्ली मेनोपॉज। उसका रीज़न वही है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट बराबर नहीं लेते हैं, अपना स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आजकल इतना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, इतना स्ट्रेस आ जाता है उसकी वजह से, तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं ना, उसका हमारे प्री मेनोपॉज पे बहुत असर पड़ता है। तो मुझे लगता है 40 एक ऐसा टाइम है जहाँ औरत को अपना बहुत ध्यान देना चाहिए। वो एक मदर है, उस टाइम तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में निकल जाते हैं, तब एक माँ को, तब उनको बचपन में कैसा होता है हमेशा माँ के साथ ही रहना ना, उसका हाथ पकड़ के वही खाना खिला रही है वही, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी दुनिया, उनके बाहर के दोस्त, काम, जॉब पे चले जाते हैं, माँ कहीं एक उस समय उसको सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है। उसे ये ना लगे कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो जाती है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। वहाँ पे औरत का को ध्यान देना है अपनी हेल्थ का। So 40s is very important. 40s आर वेरी इंपॉर्टेंट। 40s में सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है औरतों को, और बिल्कुल लग के अपना ध्यान दें अपने शरीर का, अपनी डाइट का, हैप्पी रहें, खुश रहें। कहीं अच्छे, उस समय हमें माउंटेन्स अच्छे लगते हैं, नेचर अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है कि कहीं शांति से हम जाएं बैठें, वो टाइम उसका होता है। और वही जब 20 में होते हैं, 25 में होते हैं, तो धूम धड़ाका एकदम वो होता है। So let's come back to exercise, as you are a celebrity fitness also. So people always wanted to listen कि you've been giving a great body to so many actresses. So आपने experience किया है कि like actresses who are going into their 30s and 40s, how they maintain and their work are उनके work schedules are very hectic. So any of them you can share the journey about them. सेलिब्रिटीज़ का हमेशा ऐसा ही होता है कि उनका वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता है, और जब वो फ्री होते हैं तो हमें वर्कआउट कराना पड़ता है। और उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ मेन है कि उनको स्क्रीन पे दिखना है और अच्छा दिखना है। आप सब साइड से रखो, और उनको एक्सरसाइज भी करनी है। उनका शेड्यूल ऐसा है कि एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो उनको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, जो हम हमेशा फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं कि किस तरह से उनको अपनी डाइट मेंटेन करनी है। कभी अगर एक्सरसाइज, क्योंकि सारा दिन काम करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस होता है, एक हम ये नहीं कहेंगे कि वर्कआउट हो जाता है, वो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल अगर कभी थोड़ा कार्डियो कर लिया, या कभी खाली वेट ट्रेनिंग कर ली, या कभी प्राणायाम कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इतना पूरा दिन इतने भाग दौड़ में ऐसे लगता है कि वो शांति से बैठ के कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रेथ पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगर वो आधा घंटा भी अपने आप को देते हैं, और जनरली है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऐसा करते हैं, और उससे हम अपना हेल्थ बहुत अच्छा रख सकते हैं, और हम पूरे दिन काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेन उनका भी डाइट और वर्कआउट है। टाइम नहीं होता है फिक्स, बट they have to maintain, and they are maintaining so many celebrities. I know, especially the exercise gym. So obviously everybody is going through. So I just want some of the exercise demo we can do when a woman is going through into her 40s or menopause. Some exercises which can relieve your some of the organs or relieve hormones. आप थोड़ा मतलब बता सकें कि what kind of exercises we can do.
सी पहले तो मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको प्री मेनोपॉज हो रहा है तभी आप एक्सरसाइज चालू करो, लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आप चालू कर दो। Yes. बिल्कुल चालू कर दो अगर आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना है तो, क्योंकि वो प्री मेनोपॉज थोड़ा सा ट्रबल करता है बॉडी को। जो लेडी अगर एक्सरसाइज पहले से नहीं करती है तो उसको ज़्यादा होगा, और जो लोग करते हैं एक्सरसाइज उनको भी ट्रबल होता है थोड़ा बहुत, पर जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं उनको ज़्यादा रहेगा। तो प्री मेनोपॉज में अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ध्यान देना पड़ता है। प्री मेनोपॉज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी चेंज कैसे होती है, आपका थोड़ा सा वेस्ट जो आपकी वेस्ट होती है वो उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, आपका मूड स्विंग थोड़ा होता है, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपका थोड़ी मेमोरी पावर जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंज आता है मेमोरी में। और आप जो पहले खाते थे, आपकी डाइट में कैसे होता है, जो आप चीज़ें खा रहे हो सडनली आपको लगेगा कि ये तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। आपका गट प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको थोड़ा गट में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा गैस का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे जो होते हैं वो प्री मेनोपॉज में, जब मेनोपॉज हो रहा होता है, मतलब मेनोपॉज का मतलब है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर पॉज लग रहा है। तो उस पॉज वो एकदम से बंद नहीं होगा, उसको धीरे 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 करके टाइम लगता है। जो आपका जब मेनोपॉज होगा तो वो जो टाइम पीरियड होता है आपका, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। अब काफ़ी लोगों को 40 में हो रहा है तो उसके 2-3 साल लगते हैं धीरे धीरे बंद होने में। अगर किसी को 45 है तो 50 तक आते आते वो थोड़ा डिपेंड्स ऑन कि किसका कैसा लाइफस्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आप कुछ एक्सरसाइज वो करिए। क्या यस, है? मैं आपको बताऊंगी उसमें एक्सरसाइज क्या कुछ है। तो 5 एक्सरसाइजेज जो हम घर पे कर सकते हैं। बेसिक जो मैं आपको बताऊंगी, सब लोग अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अगर किसी को जिम सूट नहीं करता, कोई बोलता है मुझे जिम अच्छा नहीं लगता, कोई बोलता है मुझे योगा अच्छा नहीं लगता, कोई बोलता है मुझे ये नहीं, तो मैं कहूँगी आपको जो अच्छा लगता है करिए। अगर आप बेसिक डेली वॉकिंग भी करते हैं एक अच्छा हेल्दी डाइट लेके, वो भी आपको वर्क करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ अपने इंटरव्यूज़ में भी कि प्राणायाम इज़ अ मिराकल। प्राणायाम प्लीज़ आप डेली करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उससे आपके माइंड को कंट्रोल होगा और आपके प्री मेनोपॉज में बहुत हेल्प करेगा। और एक्सरसाइज में आपको अगर जनरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट गो फॉर वॉकिंग। आप डेली आधा घंटा वॉकिंग करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, आपके लिए इनफ है। और जो लोग एक्सरसाइज जनरली करते हैं जिम में जाके, आप वेट ट्रेनिंग करिए और वीक में कम से कम 3 दिन आप कार्डियो करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कार्डियो में आप डिपेंड करता है आपको क्या करना है। कभी अगर आपको ट्रेडमिल करना है तो आप कर सकते हो आधा घंटा नॉर्मल वॉकिंग, कभी आपको क्रॉस ट्रेनर करना है या साइकिलिंग करनी है, तो ये चीज़ें हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो एंड ऑफ द डे आपको कहने का मतलब है कि अंदर का जो इंजन है उसको चलाते रहो, वो चलता रहेगा तो आपके साइड के जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस है, मूड स्विंग है या बहुत सारे, वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बट वो कंट्रोल में हो जाएंगी। So any kind of exercises you can show us? मैं We can कुछ do. बेसिक Basic. आसनास आपको बता सकती हूँ कि अगर आप वो करेंगे, 3 या 4 बताऊंगी। अगर आप अपनी एक्सरसाइज जो जनरली भी अगर वॉकिंग के बाद भी अगर Include कर सकते हैं। इंक्लूड करेंगे तो आपको थोड़ा सा उससे बेनिफिट मिलेगा और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। So let's see how we can go about it. आपको सबसे पहला आसन मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको पद्मासन जिस तरह से बैठ के करते हैं वैसे आपको लेट के करना है। एक पैर सबसे पहले आपको, ये वाला पैर और दूसरा पैर, अगर वो पूरा ऊपर तक नहीं जाता है तो नॉर्मल भी चलेगा, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और नॉर्मल ऐसे रख के आपको सिंपल आपका जो हाथ है वो जैसे हम तकिए पे हाथ होता है ना, ऐसा ऐसे पीछे तकिया बना के यहाँ पे रखना है। नॉर्मल लेटना है आपको एंड कीप ब्रीदिंग। उसके बाद हाथ निकाल के अभी दूसरा करना है, अपना ये सर को जितना हो सके पीछे इस तरह से यहाँ रखना है। ऐसे पद्मासन में ही रहना है, पैर को अलग नहीं करना है, सिंपल रख लीजिए। और धीरे से अपने मिडल अपर बैक को उठा के बिल्कुल पीछे की तरफ दे, धीरे से आ जाए, बस रिलैक्स। धीरे से अपने पैरों को सीधा शवासन। Now you just told me about some of the asanas during menopause we can do
एंड आई थिंक काफ़ी रिलीफ मिलेगा उससे. अब मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज सेलिब्रिटी तो है ना, वी आर ऑलवेज ईगर टू नो अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर एक्सरसाइजेज ऑल्सो. So I just wanted to know, Kiran ma'am, obviously you know you've been dealing with all big stars of South. So उनकी कुछ favorite exercises होती हैं which you can tell us, because people always wanted to know celebrity क्या खाते हैं, celebrity कहाँ जाते हैं, एक लोगों को एक curiosity रहती है. But I think when they are doing these kind of exercise, people will start following it. Yeah. So I just wanted to know, like you're doing with Tamanna, all big celebrities, उनकी भी exercise एक rhythm रहता ही है, day का एक time रहता है when they love doing exercise. So can you just one or two celebrities, I'll take the name out, you can just reveal like what kind of exercises they like. अगर मैं राजमौली जी के बारे में बात करूं, द हमारे ग्रेट favorite हैं. I love him. राजमौली राजमौली जी, अगर मैं गारू. उनके बारे में बात करूं तो उनको बॉडी वेट वर्कआउट बहुत पसंद है, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत पसंद है, उनको एकदम पावर देने वाली एक्सरसाइजेस बहुत पसंद हैं. तो वो बहुत पसंद करते हैं. वो स्ट्रेचिंग तो डेफिनेटली दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो हमें करना ही करना है. लेकिन यस, उनको बॉडी वेट वर्कआउट बहुत पसंद है. वो एकदम यू नो जब ही मैं कराती थी उनको, तो वो उनको So how बहुत much पसंद time है. he used to take? 1 hour. Like 1 hour. And in house. कंटिन्यूसली इन हाउस. और अगर राम, मैं उनकी वाइफ साथ में ज्वाइन होती थी? नहीं ओके. बिल्कुल भी नहीं. रमा राजमौली, ओके. नहीं, रमा जी बिल्कुल उनके साथ ज्वाइन नहीं करती थी. वो सुबह में एक्सरसाइज करते हैं और उनका वो रूटीन होता था. और हाउ यूज्ड टू डील विद देम व्हेन यू यूज्ड टू गो? और जब उन्होंने आपको हायर किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो हाउ इजी फॉर यू टू हैंडल हिम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फिटनेस एंड यू नो उनका पूरा शेड्यूल बनाना? सी, जब आप बहुत बड़े स्टार्स को और इतने बड़े डायरेक्टर्स को और इतने बड़े लोगों को आप ट्रेनिंग देते हो, तो डेफिनेटली जब पहला नाम आता है कि आपको उनको ट्रेन करना, तो एक दिमाग में रहता तो है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है दिमाग में कैसा होगा. मगर वो इतने अच्छे हैं. अगर मैं राजमौली जी के बारे में बात करूं तो वो इतने सिंपल नेचर के हैं कि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, वो सो काम, और वो उन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे फील कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज Yes. करनी है और क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको, कैसा गोल है आपका क्या. तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, मुझे अच्छा हेल्दी फिट बाहुबली की तरह. बाहुबली का था मुझे. बाहुबली में वो बाहुबली के डायरेक्टर हैं, तो माइंड से भी बाहुबली है वो. तब उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे थोड़ा स्ट्रांग रहना है, मेरा बॉडी हेल्दी और स्ट्रांग होना चाहिए, उसके हिसाब से ही हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड है और बॉडी वेट वर्कआउट इंक्लूड है. तो मतलब वो जितनी देर भी वर्कआउट करते थे, 1 आवर, वो दिल लगा के, मतलब ऐसा वर्कआउट होता था उनका. उनकी कोई स्टैंडिंग कोई है ऐसा कुछ जो स्टैंडिंग में वो करते हो, आप आपके व्यूअर्स और आपके फैंस को बता पाएं? ऐसा कुछ स्टैंडिंग एक्सरसाइज या कुछ उनके कोई एक्सरसाइज? ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है. Shoulder जो मैं बताती हूँ वही वो करते हैं. अच्छा. और उनको जनरली जॉगिंग और रनिंग बहुत पसंद है, जहाँ तक मुझे मालूम है. तो वो बहुत करते थे कि हमारे वहाँ छत थी, तो हम छत पे वो मतलब 10 राउंड लगाने हैं पूरे. तो वो एक वार्म अप टाइप से उनका हो जाता था, मुझे उतना याद है. तो जो मैं बोलती थी वो करते थे, एंड ही रियली ट्रस्ट मी अ लॉट. तो वो शोल्डर एक्सरसाइज हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, बॉडी वेट हो, जंपिंग जैक्स हो, रनिंग हो, वो सब कुछ करते थे. तो कौन सी वो शोल्डर कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो लाइक मैं पुशअप बताऊंगी. उनको पुशअप बहुत पसंद थे, तो ओके, ही लव्स पुशअप. ही लव्स पुशअप्स, यस. Okay. तो उनका कभी गोल भी रहता था कि मेरे को ये करना है. कितने कर लेते थे राजमौली सर पुशअप? वी आर रिवीलिंग इट टुडे. तो हाईएस्ट पुशअप्स कितने किए राजमौली सर ने? 15-20. ओके, ग्रेट मैन. 15-20 वो टाइम पे आराम से कर लेते थे. और दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, और वो तो अपने डिसिप्लिन और प्रैक्टिस में वो तो माहिर हैं, सबको पता है. सो यस. एंड व्हाट अबाउट रामचरण सर? व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज लवर ही इज? रामचरण जी से जब मैं मिली थी, तब मैं उनकी वाइफ को ट्रेन करती थी. उपासना को ट्रेन करती थी मैं. जो रामचरण जी को मैंने 1-2 स्ट्रेचिंग्स के खाली सेशन दिए हैं, बट स्टिल ही लव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. उनको, रामचरण जी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. तो वो पूरे वेट्स उठाना, शोल्डर हर दिन, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, मुझे जहाँ तक पता है कि वो सब ऐसी वर्कआउट करना बहुत पसंद करते हैं. ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ही लव्स एनीथिंग? या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर इन सब की बात करूं तो मुझे लगता है मेरी एक जो स्टार हैं तमन्ना, वो करना ये सब बहुत पसंद करती हैं. उनको
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, बॉडी वेट करना, स्ट्रेंथ उनको बहुत पसंद है, उनको पीस बहुत पसंद है उनको, क्योंकि इतनी भागदौड़ की उनकी भी लाइफ है, I know. तो उनको ये सब बहुत पसंद है। वो अच्छी डाइट लेना, और वो बहुत ध्यान देती हैं। शी इज़ वेरी डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई शी हैड अ ब्यूटीफुल बॉडी। And Upasana, if we come to know, what kind of exercise she loves? Or fitness, like not much of the gym if we talk about the yoga side, and आपने कैसे deal किया your experience on that? मेरा जो उनके साथ जब सेशन होता था उपासना के साथ, तो जितना भी था पूरा मिक्स होता था पूरा, कार्डियो और बॉडी वेट एक्सरसाइज, और एक दिन बाइसेप्स, एक दिन ट्राइसेप्स, वीक में 3 डेज एब्स करना है, 2 डेज साइड्स करना है, और ये उनको ये पूरा मिक्स में उनको मतलब कराती it's थी। mix of everything. It's a mix of It's not everything. कि एक दिन में एक किया, एक दिन में एक किया, nothing like नहीं, that. बॉडी वेट जो बॉडी पार्ट होता है वो एक ही करते हैं, लेकिन अगर बॉडी वेट वर्कआउट की बात आती है तो वो वीक में 3 दिन या 2 दिन इस तरह से। So she want mix of everything. यस। Okay, and let's come back to Surya. He's your fan. I've seen Yeah. in one of the interviews also he's taken your name, and I'm he so loves the happy. fitness regime. So what he follows and what he asked you? वो तो सबको मालूम है कि सूर्या बहुत ही फिट, हेल्दी एंड एकदम हैंडसम एक्टर है, एंड सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सबसे तो बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि सबसे पहली बात, सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ही सो फिट। जहाँ तक मैंने उनको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ट्रेन नहीं किया है, पर मेरा जितना भी उनसे कन्वर्सेशन हुआ है वर्कआउट के बारे में, मुझे पता है जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप किस तरह का वर्कआउट करते हो, और फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। वी वर ऑन शूट, हम सिंघम के टाइम पे मिले थे, तो जब शूट से थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का टाइम मिलता था तो हम आराम से बैठते थे। मुझे याद है वो मेरे पास आके बैठ गया और उन्होंने मुझे पूछा था कि किरण व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट यू डू, और बहुत अच्छी हमारी चिट चैट हुई थी, और हम लोगों ने, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो बहुत ही फिट और हेल्दी हैं। सो What kind of exercise and he loves like? सी सबको ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को बॉडी वेट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत पसंद है। जहाँ तक मैं अक्षय कुमार के बारे में जितना मुझे पता है, अक्षय जी के बारे में, वो जितने भी है आउटसाइड उनको वर्कआउट बहुत पसंद है, गार्डन में भागना, दौड़ना, कूदना, फिजिकल उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यस, सो दे आर वेरी रेयर, ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन सब लोग ऑलमोस्ट जिम में जाना पसंद करते हैं, स्ट्रेंथ, बॉडी वेट ये। But घर में when they call you or when they have the personal trainers like you, then you work more on the physical activity part में आप ज़्यादा वो करते हैं ना? घर में इतने सारे वेट्स का, हमें मशीनरी का एक्सेस नहीं होता है, तो हम सबसे ज़्यादा वेट्स उस पे बॉडी वेट पे ही ध्यान देते हैं। According to that, बॉडी you go. वेट में कितना कुछ है, बॉडी वेट में बहुत कुछ है। आप एक आराम से एक रूम में बैठ के, एक जगह पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। So I think वही सबके अलग-अलग demands होते हैं ना? Some people like this something. And what about the Prabhas? Like जिम नहीं, घर पे आए और उनको कैसी एक्सरसाइज पसंद है? प्रभास का ऐसा कुछ नहीं है। प्रभास जहाँ रहते हैं उनका पूरा सेटअप है जिम का। Okay. तो उनका तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते कि So उनको he always want a gym? He always wants, yes. Like तो some उनका पूरा exercises, exercise, body, yes, breathing. yes, You yes. don't go by all this. उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत पसंद है, और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करना पसंद करते हैं। उनका खुद का जिम है। अनुष्का शेट्टी? अनुष्का तो सबको पता है कि स्वीटी योगा टीचर रही हैं वो, तो उनको योगा बहुत पसंद है अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। प्रभुदेवा? प्रभुदेवा You were traveling with Prabhudeva sir for so हाँ, many हम लोग movies. मॉरिशस में थे, तब शूट था, तमन्ना, प्रभुदेवा जी और हम सब साथ में थे। तो मुझे जहाँ तक पता है, जितना मैंने उनको जाना, वहाँ पे हम 1 महीने थे। प्रभुदेवा सबको मालूम है, इज़ अ वर्ल्ड्स बेस्ट डांसर, इज कोरियोग्राफर ऑल्सो डांसर। तो उनको तो फिट रहना और भी ज़रूरी है, और इस एज में वो इतने फिट हैं। तो मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है, जितना मैंने देखा वहाँ पे, ही लव free exercises and body weight exercise for more stamina and all. So you were also guiding him on the exercise part. मैंने उनको पर्टिकुलरली ऐसा गाइड नहीं किया, बट आई हैड अ लिटिल चिट चैट अबाउट द फिटनेस एंड ऑल। So और कौन से सेलिब्रिटी हैं जो मतलब they love doing exercise and they follow the regime? तापसी के साथ में काफ़ी टाइम थी, तापसी पन्नू के साथ में, जब वो यहाँ पर थी हैदराबाद में। तापसी लव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलॉट, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रनिंग और इस तरह की एक्सरसाइज, जहाँ तक मैंने जाना उनको, मैंने जितना टाइम भी उनको ट्रेन किया, उनको वो सब बहुत है। शी इज़ अ टॉम बॉय, she was best in exercise, she was like fire. Any other celebrity I'm missing you would like तमन्ना, to add? जैसे हमने बात कर ली, तमन्ना तो breathing exercises, तमन्ना को बहुत पसंद है ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग। उसको वो बहुत डिसिप्लिन है, उनको थोड़ी अलग, शी इज़ वेरी
हमेशा उनको एक उत्सुकता रहती है जानने की कि आज हम क्या कर रहे हैं, या Something new she समथिंग न्यू और समथिंग ऑफ ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एंड अलोंग विद द योगा, तो उनको मिक्स बहुत ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और इनके साथ भी नहीं आपके नहीं अल्लू अर्जुन के साथ शायद आपका अल्लू अर्जुन के साथ में जब जहाँ मैं वर्कआउट करती थी वहाँ वो वर्कआउट करने आते थे, तो ऐसा मेरा कुछ खास बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। एक बार बस हाय हेलो हुई थी, हम साथ में थे जिम में। That's it. तो महेश बाबू जूनियर एनटीआर इनसे मैंने इंटरेक्शन प्रकाश राज जी को ट्रेन किया हाँ है। प्रकाश राज, yes. व्हाट काइंड ऑफ लाइक ही लव्स एक्सरसाइज और फिटनेस लव ही हैव प्रकाश राज जी उनको मैं वेट ट्रेनिंग कराती थी। उनको वेट ट्रेनिंग ज़्यादा पसंद है, बॉडी वेट इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, तो उनको वेट ट्रेनिंग कराया, कार्डियो कराया, उनके लिए इतना इनफ हो जाता था। कहते नहीं मुझे इतना करना है, एंड ही यूज्ड टू डू गुड, एक अच्छी डाइट कैसे लेना है, तो वो उसमें बहुत खुश रहते थे, एंड या वी गॉट अ गुड रिजल्ट। व्हाट काइंड ऑफ लाइक इनका एक शेड्यूल रहता है, लाइक इन अ डे 1 hour इट्स इनफ फॉर 1 hour is enough. 1 hour is enough. 1 hour इज इनफ Yes. लाइक इन अगर कुछ पर्टिकुलर गोल है किसी मूवी के लिए कि हमें ऐसा बॉडी बनाना है, तो उसके लिए हम 1-1.5 hour हम दे सकते हैं, देते हैं जनरली कि लेकिन अगर एक जनरल फिटनेस अगर हम कर रहे हैं कि हमें बॉडी को ऐसे ही मेंटेन रखना है, बिकॉज हमें स्क्रीन पे सब देख रहे हैं हमको, तो उसमें 1 घंटा इनफ है, और आप अपनी अच्छी डाइट आप मेंटेन करो, दैट्स इनफ फॉर यू। So थोड़ा एक demos, let's come back to that. It was a great interaction, chit chat. So there was the standing some exercises you Yeah. were telling to control, I mean to overcome the problems of menopause. So premenopause, if you yeah. can show it, and then we'll Yeah. come to next point. ओके, सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधे खड़े होना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और बहुत ही बैलेंस करके ध्यान से अपने पैर को उठाना है। पैर को उठा के धीरे से सीधे लेके जाना है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आप सपोर्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से ऐसे सपोर्ट लेके धीरे से आप एक 5 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, धीरे से आप नीचे आ जाइए। अभी वापस से अपने पैर को ऊपर उठाना है और अपने स्टमक को थोड़ा सा प्रेशर देके उसको अपने यहाँ घुटने से उसको दबाना है। इसमें भी आप सपोर्ट लेके कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब बैलेंस कर पाएँ। तो अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो तो आप सपोर्ट ले सकते हो किसी वॉल का, पर धीरे से पैर को ऊपर उठाना है। पैर को ऊपर उठा के एंड जस्ट प्रेस एंड कीप ब्रीदिंग। सांस को रोकना नहीं है। अगर आप सपोर्ट लेंगे तो आप ऐसा कस के पकड़ के अपने स्टमक को दबाइए और धीरे से सांस लेते रहिए। यहाँ भी आप 5 बार काउंट करिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अभी आता है आपका ये जो पैर है, धीरे से आपको पीछे की तरफ, किक बहुत ज़ोर से नहीं करना है आपको, धीरे से जस्ट पीछे पुश करना है। आप इस वॉल पे ऐसे पकड़ लीजिए आप वॉल को। अगर वॉल नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल ऐसे ही खड़े हो सकते हैं, सिंपल। और पैर को धीरे से पीछे लेके जाइए ऐसे। सपोर्ट ले सकते हैं तो आप सपोर्ट लीजिए एंड काउंट 1 2 3 4 5, धीरे से आ जाइए। फिर अपने दूसरे पैर को भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5। ऐसे कम से कम आपको 5 बार करना है। 5 बार ये वाला पैर और 5 बार ये वाला पैर, आराम से करिए आप। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको फॉलो करनी है प्री मेनोपॉज में। So it was really useful information which is needed for every woman. I mean, very simple exercises. You can just Very do with a simple. fun Very simple. sake, and you know, just you can get big relief for doing out of this. प्री मेनोपॉज होता ही ऐसा है कि बहुत ही रिलैक्सिंग और पीसफुल सब कुछ चाहिए होता है, एकदम जोर ये सब कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स से आपको And I एक्सरसाइज think करनी these है। exercises are far better. Like the results Yes. are more good as compared to gym jao, thak jao. Yes. It gives you peace of mind also. Connection. So मेरा थोड़ा सा और एक आपसे क्वेश्चन है which people always wanted to know. If you can just एक दो stars के मैं नाम लूँगी और उनके कुछ favorite exercise आप बता पाएँ, क्योंकि people, as I told you on my interviews, people always curious to know and they follow. राजमौली साहब की कोई अच्छी favorite exercise? Push-ups. Standing. अच्छा, push-up. कुछ shoulder या something you can, all men's, you know, they've all wanted to do a standing some exercise or demo you can do. The standing. Jumping jacks. Like how? Jumping jacks is like
ये राजमौली सर की फेवरेट एक्सरसाइज है. हाँ, so Like how you do ये it? सब चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस, जिसमें से ये भी एक है. Okay. So I think 15-20 times. 50. 50, 50. 50. Not bad. What Tamanna likes? Tamanna likes What's one of her favorite exercise? पुशअप्स ही है. She also likes push-up. शी लव पुशअप्स, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, चालू करते हैं, तो मैं हमेशा उनसे पुशअप्स कराती हूँ. तो शोल्डर की या कुछ Shoulder, स्टैंडिंग कुछ एक एक्सरसाइज वो करती हो, स्टैंडिंग एक्सरसाइज में कुछ. स्टैंडिंग में वो साइड्स करना पसंद करती हैं. हाँ, तो कैसे? साइड्स में जनरली हम हाथ में कोई भी वेट ले लेते हैं और दोनों पैरों को मिला लेते हैं, बॉडी बिल्कुल सीधा. ओके. और ऐसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये. आपके हाथ में वेट है एंड सिंपली ऐसे तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बट सिंपली जस्ट She'll do keep doing all जस्ट this. कीप डूइंग दिस. 20 के आपने 3 सेट्स कर लिए या 20 के 4 सेट्स कर लिए विद वेट्स. सो वो रिलैक्स भी देता है, और आपके जो लव हैंडल्स, जो साइड्स होते हैं, वो स्ट्रेच भी होते हैं और कम भी होते हैं. प्रभास की कोई स्टैंडिंग एक्सरसाइज फेवरेट? प्रभास तो वेट Only- ट्रेनिंग, only weight. उनको वेट ट्रेनिंग पसंद है. हाथ में आप डंबल दे दीजिए, जो बस, शोल्डर्स that's एंड it. बाइसेप्स, That's he ही told. लव्ड इट. या तापसी कुछ स्टैंडिंग या सिटिंग एक्सरसाइज उनकी कोई फेवरेट? तापसी अगेन शी लव बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. जब मैं कराती थी, मुझे मालूम है कि बॉडी वेट एक्सरसाइज, सो सम कैसे? जंपिंग जैक्स और सम वन. ओके, शी लाइक्स दिस. या सो That's इस तरह की Taapsee एक्सरसाइज ही. शी लव्स मोर ऑफ Yeah. दैट. उपासना की कोई जो स्टैंडिंग में खड़े खड़े ही करते हो? स्टैंडिंग में ऐसा मुझे पर्टिकुलर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मुझे याद है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पसंद करती थी जब मैं उन्हें एक्सरसाइज कराती थी. तो अगर आप शोल्डर की बात करें, तो अगर हम सिंपल, अगर हम डंबल्स लेके अगर हम शोल्डर करते, शोल्डर प्रेस सिंपल ऐसे रख के, और हाथ में अगर आपको डंबल है तो सिंपल शोल्डर प्रेस. दिस इज़ वेरी यूजफुल, जो एक बेसिक शोल्डर की एक्सरसाइज है. तो इस तरह की एक्सरसाइजेस. So I think exercise is very important, not for the normal people, even the celebrity follow that, and you're doing as a good job and giving a information to all the viewers, and you know that we can be fit. वो information reveal करना भी बहुत बड़ी बात है कि ये exercise करो, fit रहोगे. So मैं बस end में जानना चाहती हूँ कि life is short, right? We believe in that, and life is beautiful. So how a life can be beautiful at 40 and 50, and for you also, what is funda you are taking? See, for me is मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देती हूँ कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, डिपेंड हाउ यू सी इट. आप उसे कैसे देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पॉजिटिव रहिए. बहुत बार ऐसा होता है, कोई इंसान बोलता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हर बार हर मतलब एवरी टाइम हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, बट दैट्स ओके. समटाइम अगर आप नेगेटिव भी हो, कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आपको तकलीफ हो रही है, कभी आपको रोना आ रहा है, कभी फ्रस्ट्रेशन, वी आर ह्यूमन, Yes. दैट परफेक्टली फाइन. अगर आपको ये सारे इमोशंस हो रहे हैं तो, बट एंड रिजल्ट इज कि वो सब थोड़े टाइम के लिए होता है. एंड ऑफ द डे आपका गोल होना चाहिए, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए. एंड लाइफ में चीज़ें होती हैं, होती रहेंगी, पर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, उतना ही आप माइंड से हेल्दी रहेंगे. और अगर माइंड हेल्दी रहेगा तो माइंड ऑटोमेटिकली बोलेगा कि आपके शरीर को चलना है, क्योंकि माइंड आपका पॉजिटिव है. तो आप जिम जाएंगे या वॉकिंग करेंगे, वो माइंड सोचेगा ना बराबर पॉजिटिव, अच्छा सोचेगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा शरीर आपका काम करेगा. सो स्टे हेल्दी और माइंड को पॉजिटिव रखिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए. चाहे वो प्री मेनोपॉज हो या कुछ भी हो, लाइफ में कोई भी तकलीफ हो, सब चली जाती है, सब आती है जाती है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है. सब राइट प्लेस पे आ जाता है. So when people say Kiran at 50, how you keep a tagline for you? Proud of myself. Because we know it, you know, you are the first lady. Yeah. You got your first 6 abs, so you were 40, right? I was first I made 37 जब 37 की थी तब, then 45. 45 में 12 packs ज़्यादा थे? नहीं It's six more- pack. Six That pack. was more good, you know. So you are the first lady, you had your first Mother. 6 packs. Mother. Mother also, at age of 38. When you were 45, you had your 6 pack. अब 50 में आप क्या देने वाले हो? Any plans you would like to reveal? 50 में पहले तो मैंने प्लान किया था कि मैं बॉडी बनाऊंगी. Okay, muscles. मसल्स वापस से मैं पूरा बॉडी, बट
दैट्स परफेक्टली फाइन। आपके मसल्स और आपका सिक्स पैक ये नहीं दर्शाता है कि आप फिट और हेल्दी हैं। फिट और हेल्दी का मीनिंग कुछ और होता है। अगर आपकी डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा हैं और आप नहीं कर पा रहे हो, बट स्टे हेल्दी, गो फॉर वर्कआउट, डू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, दैट्स कॉल ऑफ फिटनेस। तो my goal next is just be healthy and strong and Have Happy. more strong muscles. happy. So I must say, I would like to end up seeing your muscles. Yeah. अभी वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, but I'm so strong, everyone knows. Yeah, I love. मेरा ये बहुत strong I है। remember your photograph with Surya. You had this pose. हाँ, ये pose, हाँ, अब तो उतना ज़्यादा नहीं है, but I know कि my mind is so healthy, so So I want to give my ending part with your lovely muscles. So it was a really wonderful and inspirational interview with With- Kiran ji, who's going to be 50 with her strong muscles. Ladies, Yeah. it's a message for us. I'm also following. Today my mind has changed. She's the person who is keep guiding me, and we have to do it. Age is just a bar. That's it. Thank right? you. Yes. So for more updates, keep watching iDream. Till then, goodbye.